Hello everyone, welcome to my channel English with Evelyn, and today we are going to do Rain on the Roof, which is a part of class 9 reader Beehive, NCRT and SCRT book. Okay, and let us begin with an introduction of the poet. The poet is Kurt Skinny, and he is an American poet, journalist, and a politician. And he is known, very well known for this poem. Okay, because this poem has been given a tune. Okay, and it is used as a song also. तो ये रेन ऑन द रूफ पब्लिश हुई थी कियूका एंड अदर पोम्स, and it was published in Cincinnati in 1855. Okay, and this is the name of the anthology in which it was published. Okay, and these are just the first three stanzas of this song or this poem. Okay, this poem was actually 5 stanzas long. The remaining 2 stanzas are not mentioned here. इसमें जो 4th stanza है, 4th stanza में ये याद कर रहे हैं अपने भाई और बहन को, ठीक है, और 5th stanza में ये याद कर रहे हैं अपनी beloved को. ओके, और ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हम एक बार एक्सप्लेनेशन के बाद में हम समझेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ और कैसे यूज़ हुए हैं. ठीक है, तो ये पोम का इंट्रोडक्शन है. बट instead of going into this introduction which is already written, you can read over from here. Let us come straight to the first stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres. starry spheres क्या है यहाँ पे? मून एंड स्टार्स. ठीक है, तो ह्यूमिड शैडोज कौन सी हैं? ह्यूमिड शैडोज किसको बोला है इन्होंने? ह्यूमिड शैडोज बोला है डार्क क्लाउड्स को. ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाउड्स कैरी रेन, सो क्लाउड्स आर कॉल्ड dark, they are called shadows, dark clouds. Okay, hover means they are over, hanging over all the starry spheres, the sun, the moon and the moon and the stars. And the melancholy darkness gently weeps. Darkness is weeping. Okay, so this is clearly personification. So the melancholy darkness, and darkness is said to be melancholy. Okay, the sad darkness, it's weeping in rainy tears. Okay, so the darkness is sad, and in the darkness, because it is raining, he says that the darkness is weeping. So the raindrops are compared to tears. Okay, what a bliss. Now when it is raining, जब बारिश हो रही है, तो बारिश का डिस्क्रिप्शन कि रात में बारिश हो रही है, उसके बाद में बोलते हैं what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. कि कितना ही आराम है या कितना प्लेजर है इसमें कि you can just lie listening to the patter of the soft rain overhead. है ना, ऊपर बारिश हो रही है ना, और आप अपने चेम्बर मतलब रूम में, है ना, आप वहाँ पे लेट करके बारिश की पिटर पैटर को, बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. शिंगल्स क्या है? जो ऊपर रूफ पर जो टाइल्स लगी हुई है ना, वो है. Every tinkle is the sound of the raindrops, has an echo in the heart. Echo मतलब गूंज रही है वो हार्ट में, है ना, उनके दिल में वो raindrops गूंज रही हैं. That means the raindrops are having an effect on him. The raindrops are arousing his emotions. देखो, heart is related to emotions. ठीक है, so the emotions are aroused, awakened. Okay, and 1,000 dreamy fancies, और हज़ारों imaginations, ख्वाब उनके सामने. ख्वाब मतलब उनकी imaginations जो हैं अब उनके सामने आ गई हैं.
फिर into busy being start, they start getting busy, मतलब वो शुरू हो जाती हैं, बिजी हो जाती हैं, क्योंकि अब वो उनके जो इमेजिनेशन है, द थॉट्स, वन थॉट लीड्स टू अनदर, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है. एंड द 1000 recollections, recollections का मतलब क्या है? यादें, मेमोरीज. ठीक है, 1000 recollections weave their air heads. recollections को भी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है ना. they weave their air threads into woof. air threads मतलब recollections का कोई tangible thread तो है नहीं, तो कैसा है, इसलिए उसको बोलते हैं वो air threads into woof. woof क्या है? जो लूम पर जो बुनाई होती है, तो जो लूम यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जो थ्रेड लगा होता है ना, जिससे वीविंग हो रही है, जिसकी वीविंग हो रही है, उसको वूफ कहते हैं, है ना. तो वो बनता जा रहा है, जैसे वीविंग होती है, कपड़ा बनता जाता है, वैसे ही ये जो थॉट्स हैं, दे आर लीडिंग वन थॉट टू अनदर. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे कि मैं सुन रहा हूँ इस जब जैसे मैं ये रेन को सुन रहा हूँ, जैसे जैसे रेन की पिटर पैटर है, जो रेन की आवाज़ है, इसको मैं सुन रहा हूँ, वैसे क्या हो रहा है, मेरे जो थॉट्स हैं ये चलने लगे हैं, है ना. थॉट्स दिमाग में आने लगे हैं, वन थॉट लीडिंग टू अनदर. ये हुआ सेकेंड स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि रेन शुरू हो गई है और ये आराम से अपने कॉटेज में, अपने रूम में आराम से लेट करके ये बारिश की आवाज़ को सुन रहे हैं. फिर सेकेंड स्टैंजा में इन्होंने बताया कि बारिश का इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है. ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि इनके इमोशंस अराउज हो गए हैं, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आने लगे हैं, है ना. और जैसे जैसे ये बारिश को सुन रहे हैं, ये ख्याल जो है ये बुनते जा रहे हैं. अब क्योंकि वन थॉट लीड्स टू अनदर, अब क्या होता है कि जो इनके थॉट्स हैं ये कहाँ जा कर के रुकते हैं, इनकी माँ पर. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, इनकी माँ पर इनका ख्याल आकर के रुकता है. और ये कैसे आती है, इनकी माँ कैसे आती है इनकी इमेजिनेशन में, जैसे सालों पहले. अगॉन मतलब अगो, है ना. अगो अगॉन दोनों से इसको, कि जैसे जो साल पहले निकल चुके हैं, द ईयर्स विच हैव गॉन बाय लॉन्ग टाइम अगो, है ना. जैसे वो आती थी, कब आती थी? टू रिगार्ड. हियर रिगार्ड का मतलब क्या है? टू सी. रिगार्ड फ्रेंच में रिगार्ड का मतलब होता है सी. तो रिगार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? टू सी. टू सी द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स किनको बोला है? द सिबलिंग्स, द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स. ये माँ सोने के पहले अपने बच्चों को, जो कि पोएट और इनके सिबलिंग्स हैं, उनको देखने आती है. और मतलब होता है बिफोर. बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. तो अगले दिन सुबह डॉन में, डे ब्रेक के टाइम फिर आकर के देखेंगी. तो जाने के पहले एक बार उनको आके बच्चों को देखती हैं, जैसे माँ यूजुअली करती हैं, है ना. सोने के पहले बच्चों पे एक बार नज़र डालती हैं, अगर उनको टक करना होता है तो टक करती हैं, ठीक है, देखने आती हैं. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक. तो ये क्या दिखाता है? इनका स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है ना, कि कितनी स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं इस वक्त अपनी माँ की प्रेजेंस. ये बोलते हैं आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. जो उनका लविंग लुक है ना, जो उनका अफेक्शनेट लुक है, her affectionate glance. Okay, he can see that. As I list मतलब है इसका यहाँ पर as I listen to this refrain. refrain का मतलब है कोरस.
या म्यूजिक जो ऊपर बारिश की चल रही है ना, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स वही जो ऊपर बताया है मैंने बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ये म्यूजिक किसने चलाई है? रेन ने। किस पे चला रही है? ये ऊपर टाइल्स पर, ऊपर रूफ पर, जिस तरह से जब ये रेन म्यूजिक चला रही है, ये उसको सुनते सुनते ये यहाँ पर अपनी माँ को याद कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी पोम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे है अलिटरेशन। अलिटरेशन क्या होता है? जब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स कंसेक्यूटिव टू और मोर वर्ड्स में यूज़ किए गए हों, कंसेक्यूटिव ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो उस लाइन में यूज़ किए गए हों, है ना, जैसे यहाँ पे स्टारी स्फीयर्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 ताकि आपको याद रहे कि अलिटरेशन है। तो क्या क्या है अलिटरेशन? स्टारी स्फीयर्स है, प्रेस द पिलो, ये भी अलिटरेशन है। ठीक है, और लाई लिसनिंग, ये भी अलिटरेशन है, और बिजी बीइंग, ये भी अलिटरेशन है। वीव वुफ अलिटरेशन है। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, ये भी अलिटरेशन है। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस के वर्ड के बीच में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं वर्ड के बीच में, तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। फिर और कहाँ है? फॉन्ड, आई फील हर फॉन्ड लुक, फील फॉन्ड, फ साउंड अगेन इज रिपीटेड, दिस इज अगेन अलिटरेशन। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं अलिटरेशन के। दिस पोम इज लाइक अ वर्कशॉप ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। सेकेंड है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या होता है? जो साउंड वर्ड्स होते हैं। ओनोमैटोपिया क्या है? साउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे साउंड वर्ड्स कौन से हैं? पैटर, ठीक है, ये साउंड वर्ड है। और एक और है टिंकल, ये भी साउंड वर्ड है। ठीक है, फिर है पर्सोनिफिकेशन। किसको पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे? डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, डार्कनेस जेंटली वीप्स, तो डार्कनेस रो रही है, तो ये डार्कनेस पर्सोनिफिकेशन है। फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब आप एक चीज़ की क्वालिटी दूसरे को दे करके पोइटिकली यूज़ करें उसे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हाँ, द मेलनकली डार्कनेस, ये जो है ये पूरा ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर 4। क्यों? क्योंकि डार्कनेस कभी सैड होती है क्या? सैड कौन है? पीपल आर सैड, डार्कनेस इज नॉट सैड, बट ही सेज दैट, he calls it melancholy darkness. Darkness is not melancholy, people are melancholy, because he is shifting the epithet from one to the other. This is called transferred epithet. Epithet क्या होता है? जैसे adjective होता है ना, वो। Now next is assonance. assonance क्या होता है? जब भी जैसे कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस में वाउल साउंड रिपीट होता है। यहाँ पे है जैसे ऑफ, सॉफ्ट, ओ साउंड, सेम साउंड इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। फिर है एंजैममेंट। एंजैममेंट होता है रन ऑन लाइन्स। यहाँ पे रन ऑन लाइन्स का मतलब होता है, यहाँ पे है जैसे कि ये आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन।
ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो जब लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है तो उसको कहते हैं रन ऑन लाइन्स या एंजैममेंट, दोनों एक ही बात है। फिर इमेजरी, सी ही इज क्रिएटिंग एन इमेजरी राइट हियर इन द बिगिनिंग। ओके, ही इज creating an image of a dark night with clouds hovering over the moon and the stars. Okay, and you know which is dark and the clouds are there. तो ये एक image हमारे सामने create कर रहे हैं, तो ये हो गया imagery. फिर है hyperbole. कहाँ कह सकते हैं hyperbole? 1000 dreamy fancies and 1000 recollections. ठीक है, recollections may not have been 1000, the poet seems to be exaggerating over here. तो ये होता है hyperbole. hyperbole क्या होता है? जब exaggeration होता है. और repetition, जहाँ repetition है, ये देखिए यहाँ पे repetition है, 1000 and 1000, है ना, ये repetition है. फिर मेटाफोर, मेटाफोर कहाँ पे है? रेनी टीयर्स, द टीयर्स आर लाइक रेन, कंपैरिजन है ना, लेकिन यहाँ पे एज द रेन ड्रॉप्स आर लाइक रेन नहीं बोला है, या द रेन ड्रॉप्स आर लाइक टीयर्स नहीं बोला है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? रेनी टीयर्स. तो ये मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया है, और कॉन्सोनेंट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेन ऑन द रूफ. आई होप दिस मस्ट हैव बीन यूजफुल टू यू. ओके, एंड आई होप you will keep watching my videos and sharing them also. Thank you so much. Bye bye.